Hello friends, once again welcome to our channel. Today's topic is practice at home 15.3. Earlier we completed practice at 15.1 and 15.2 in which we saw area of rhombus. So today we are going to start with area of trapezium. Area of trapezium is nothing but half, that is 1 by 2, multiplied by sum of length of parallel sides, which means these two sides are parallel. So sum of length of parallel sides, we have to add AB and DC, and the height. Height is considered as the perpendicular line drawn from the parallel sides. Okay, this is considered as height. स्ट्रेट अवे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें ए बी इज गिवन एज 13 सेंटीमीटर. आई विल राइट इट ओवर हियर. वी हैव डी सी एज 9 सेंटीमीटर and AD as 8 centimeter, which means everything is given. You just have to find the area. I will write area of the trapezium ABCD with this symbol is equal to, I will write the formula once again, sum of parallel sides multiplied by height. Okay, half multiplied by sum of parallel sides, that is 13 plus 9, and height was 8. You can directly divide 2 and 8, that will be 4. 13 plus 9 is 22, plus 4 you will add, the answer will be 26 centimeter. Sorry, not 26, here it is multiplication. We will multiply 22 and 4, the answer is 88 centimeter square. Okay, so with this we have completed the first question. I think it's very easy because the formula is already given to you and all the lengths are also given. So looking at the diagram and marking the points and giving the values to each side, you can solve this question very easily. Okay, moving on to the next question. Second one, that is length of two parallel sides is given. Again, length is given, the two parallel sides 8.5 and 11.5, and the height is respectively given. So you can easily find the area. Area is equal to half into sum of parallel sides. You always have to write the formulas. Sum of parallel sides, ऐसा होता है कि फॉर्मूलाज अगर आप हर बार लिखते हो तो आपके लिए इजी है कि वो फॉर्मूला जल्दी लर्न भी हो जाता है और आपकी सॉल्विंग भी वैसी थोड़ी फास्ट भी हो जाती है. ओके, सॉरी, हियर इट वाज नॉट मल्टीप्लाई, इट वाज एडिशन. Height was 4.2. Okay, you can directly divide 2 and 4.2, it will be 2.1, and add these two numbers, that will be 1920. So 20 multiplied by 2.1, it would be answer as 42 centimeter square. Okay, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है. PQRS जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रोपेजियम है. PQ की लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है और उसके बाद में PM जो है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ है वो भी चेक करना पड़ेगा हमें. SM जो है वो 3 दिया और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रोपेज, टू पैरेलल साइड्स इज 4. मतलब कि ये देखिए यहाँ पे 4 जो है ये हाइट कंसिडर कर सकते हैं और PQRS के हमें फाइंड करनी है. सबसे पहले हमें यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, पैरेलल टू PM और परपेंडिकुलर टू ये. यहाँ पे आप N नाम दे सकते हो, इसका मतलब यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर पक्का है. ओके, ये याद रखिए. नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया है 7, यहाँ से यहाँ तक होगा 7 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ MN इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सिमिलरली SM और MR जो है वो हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर. एक्चुअली मीटर में, तो मीटर में लिख लीजिए, सॉरी सेंटीमीटर में ही था. तो टोटल लेंथ ऑफ SR विल बी 3 plus 7 plus 7, sorry 3, that will be 13 सेंटीमीटर.
तो एस आर आपको ये मिल गया पूरा 13। अब फॉर्मूला डालते हैं एरिया का, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ साइड्स। मैं डायरेक्टली सम करता हूँ, फॉर्मूला इस बार नहीं लिख रहे हम लोग। ये देखिए प्लस कर दिए, 13 पूरी साइड थी और हाइट थी 4। तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड करके ऐसे 20, 7 + 13 20, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर लिखिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मैं चेक कर लेता हूँ कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या सच में राइट आंसर आया है हमारा, क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है। 15.3 का हम लोग आंसर चेक कर रहे हैं। 15.3 वी आर ओके। देखिए 40 सेंटीमीटर जो आपको लग रहा था वही सेम आंसर जो है यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी विल सी वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप तो इजीली उसको कह सकते हो कि दिस इज हाइट एंड दिस इज कंसिडर्ड एज बेस। आप बोलोगे एरिया इज हाफ ऑफ एरिया इज हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इजी है। लेकिन जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और तीनों साइड शायद अलग अलग भी हो सकती है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 साइड्स दिए ए, बी और सी। तो सबसे पहले आपको निकालना है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के लिए आपको क्या करना है कि भाई जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, इन सबको प्लस करें और उसको कर दीजिए डिवाइड बाय 2। उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर और स्मॉल एस। और उसके बाद में ये फॉर्मूला यूज करना है, रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट में एस माइनस पहली साइड, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तीनों साइड्स का जो माइनस करके आंसर आएगा उन तीनों को मल्टीप्लाई करना है एस के साथ में। दैट इज ऑल अंडर रूट। अभी यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करके देखते हैं। चलिए 3 साइड्स दिए हुए हैं 45, 39 एंड 42 और इसका एरिया पता करते हैं। पहले पता करते हैं सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी होल बाय 2 और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया 45 प्लस 39 प्लस 42 और इसको कर दिया मैंने डिवाइड बाय 2। तो दोस्तों देखिए क्या क्या आंसर आएगा। 40 और 40 होता है 80, 80 और ये हो जाएगा हमारा 30, 110 और 121, 126। ठीक है, टोटल होता है 126। डिवाइड बाय 2 करें, आंसर आ जाएगा आपका 63। तो भाई 63 सेंटीमीटर है आपका सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा पार्ट। अब देखते हैं कि फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, रूट ऑफ दैट सेमी पेरीमीटर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट एस माइनस सी, ये सब रूट के अंडर है। तो देखिए सॉल्विंग करते हैं और पता करते हैं आंसर क्या आता है। ये लगा दिया रूट, एस है हमारा 63, 63 माइनस पहली साइड 45, 63 माइनस दूसरी साइड 39 और 63 माइनस 42। चलो अभी सॉल्विंग नहीं करनी इतनी जल्दी, हमें सिर्फ पहले मल्टीप्लिकेशन वाले जो माइनस करके नंबर आते हैं वो पता करने हैं। 63 में से अगर 45 जाता है तो बचता है 18 और 63 में से अगर 39 जाता है तो बचता है 24 और 42 जाता है तो बचता है 21। अब दोस्तों देखा जाए तो ये रूट के अंदर नंबर्स है तो इसलिए इनको फैक्टराइज करना जरूरी है। ठीक है, मैं इन सबको फैक्टराइज कर रहा हूं, याद रखें फैक्टराइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 63 जो है वो आता है 7 के टेबल में 9 को और तोड़ के लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 3 और फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 2 लेकिन मैं 3 इंटू 3 लिखूंगा 9 को और फिर 2 लिखूंगा। 24 को भी आप यहाँ पे स्प्लिट करके देख सकते हो कि 24 जो है वो कब आता है, ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा। तो ये सारे नंबर जो है हम लोग साथ में लिख सकते हैं और 21 होता है 7 3 21। अब चलिए इनके बीच में से जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। 7 यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों सबसे पहला नंबर 7 जो है वो ब्रैकेट के इसको रूट के बाहर आ गया। 3 आ चुका है बाहर और एक 3 आने वाला है, वो आने दो। 2 आने वाला है, आने दो।
next one is again 2, and the last group will be of 3. We will directly multiply all these numbers. 7 3s are 21, 21 3s are 63. I will write 63, and this will be 4, and this will be again 3. Okay, okay, let's see. 63 will be, I will multiply 63 and 3 first, that will be 189, and last में हम लोग 189 और 4 मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोस्तों. So what will be the answer? 636 to 535. So the final answer is 756 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई थिंक राइट आंसर आना चाहिए, बट हम लोग तभी 15.4 जो है वो फटाफट चेक कर लेते हैं क्या आंसर राइट है या नहीं. 756 देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम लोगों ने ये अच्छी तरीके से सॉल्व किया, देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ. ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का, और सॉरी इस एक्सरसाइज का नहीं लेकिन आज की वीडियो का जो है ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है. देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है. 2 ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं. हाँ, 2 ट्रायंगल्स है, लेकिन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया सेपरेट करने पड़ेंगे और तब पता करने के बाद हमारा आंसर आने वाला है. चलिए फर्स्ट जो ट्रायंगल है वो तो आपका बहुत इजी है कि आप फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया पता तो कर लोगे इजीली, क्योंकि आपको मालूम है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपकी नजर के सामने ही है. इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. वी हैव अ 90 डिग्री एंगल ओवर देयर एज एस. So we can find this using half of base into it. So I will directly write area of triangle PSR is half of base, that is SR, and height, that is PS. So I will write base is 15 and height is 36. Let's divide these two numbers and we will get 15 into 18. Okay, which is I think 270 centimeter square. Moving on further, we have this triangle. Okay, ओके चलो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था इसलिए मैंने पॉज कर दिया था वीडियो. और हमें सिर्फ अभी ये ट्रायंगल पता करना है, लेकिन उस ट्रायंगल पता करने के लिए, इस ट्रायंगल को पता करने के लिए हमें ये वाली साइड मालूम होनी जरूरी है. सो वी विल राइट पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर. व्हाई? बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर. ओके, आई एम राइटिंग ओवर हियर एज पाइथागोरस थ्योरम. देखो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये लिख दिया हमने, और ये लिखने के बाद ही हम लोग पी आर स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए 36 का स्क्वायर अगर किसी को नहीं आता है तो वो डायरेक्टली नंबर्स को 36 इंटू 36 कर सकता है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो 1296, और इसके साथ में 225 जो है वो है हमारा 15 का स्क्वायर. दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो आंसर आता है 1521. अभी यहाँ पे आया है आपका पी आर स्क्वायर और ये है 1521. ठीक है, तो 1521 अगर देखा जाए तो किसका रूट है, तो क्योंकि यहाँ पे पी आर होगा और ये रूट के अंडर आएगा 1521 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 39. So friends, we have PR is equal to 39 centimeter, and then now we will find the area of triangle PRO. O is it is, oh sorry, it is PQR. PQR, so we can write PQR. Okay, for that we have to write all the sides first. PQ is 56. PQ is equal to 56 centimeter. Then we have QR is equal to 25. Okay, centimeter it is.
and just now we have found, we have solved PR is equal to 39 centimeter. Okay, with this we will find the semi perimeter, that is sum of all sides divided by 2. I will write 56 plus 25 plus 39 divided by 2. तो टोटल करते हैं इसकी और पता करते हैं फटाफट इसका आंसर। तो दोस्तों 56 प्लस 25 और 39 इट विल बी आई थिंक around 120, which is 60 centimeter divided by 2. Now we will write area is equal to root of s, that is 60, s minus a, that is 60 minus 56, 60 minus 25, then we have 60 minus 39. Okay, सॉल्विंग करते हैं आगे इसकी। 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 बिकॉज 60 माइनस 56 इज 4। यहाँ पे आपके पास आएगा 15 और दिस विल बी 21। ठीक है, तो देखिए अब ये आएगा 60 का कितना आंसर आने वाला है, दिस विल बी 15 4 ज़ा 60 और 4 पहले से और 15 भी पहले से है और सिर्फ 21 का कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो 15 इंटू 4 तो बाहर आ गया, 21 अंदर ही रह गया, तो ये हो जाता है 60 रूट 21। तो दोस्तों थोड़ा सा अजीब सा आंसर है क्योंकि अभी इसके अंदर हम लोग अभी और भी ऐड करने वाले हैं। तो टोटल एरिया कितना होने वाला है, टोटल एरिया होगा 270, जो ऊपर आया था उसके साथ में 60 रूट 21 हमें करना है प्लस। ठीक है, सो देखते हैं, चलो क्या ये आंसर राइट था, ये देखना जरूरी है। 15.4 का आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर था। तो आंसर हमारा कहीं पे गलत हो चुका है और हमने ये कहाँ पे गलत किया हमें ये देखना भी जरूरी है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, जो गड़बड़ थी वो हमें मिल चुकी है। मैंने यहाँ पे आपको गलती से 15 लिखा था दोस्तों, यहाँ पे 35 होना चाहिए था, इस वजह से ये जो आंसर है ना ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे ही करेक्ट किया जाएगा। 60 जो है 15 4 ज़ा तो 60 होता है, लेकिन ये 35 था, तो ये 7 5 ज़ा 35 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 21 को 7 3 ज़ा 21। तो जो ग्रुप बन रहा है वो है हमारा 7 का, और अभी पहले 7 लिख देता हूँ, उसके बाद में बाकी का ग्रुप बनाते हैं। 15 को हम लिखेंगे 3 5 ज़ा 15, 4 को लिखेंगे 2 2 ज़ा, 5 पहले से है और 3 पहले से। अब ग्रुप बनेगा देखो 7 3 का ग्रुप बनेगा दोस्तों, 5 का ग्रुप बनेगा और 2 का, तो ये आएगा 210। अब इसको मैं प्लस करता हूँ 210 को, पक्का 210 आएगा ना, आई गेस यस 210 इज द राइट आंसर। सो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आता है 210 नहीं, और कुछ गड़बड़ की होगी हमने शायद। 15 4 ज़ा इज 60, यस इट इज राइट। 7 3 ज़ा इट इज 21। वेट, ओके, ये वाले 4 का हमने कुछ किया नहीं था इसलिए वो मेरे से गड़बड़ रह गई। तो यहाँ पे और एक 2 आएगा विच मीन्स 210 मल्टीप्लाइड बाय 2, द आंसर इज 420। अब हम ऐड करते हैं 270 के साथ 420, सो द फाइनल आंसर इज 690 सेंटीमीटर, 690 centimeter square is the final answer. So I hope this video was useful for everyone of our student from class 8th। 15.4 एक्सरसाइज के हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। आई होप दिस वाज यूजफुल, इवन 15.3 भी कंप्लीटेड। ओके, इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।